Good morning to everyone. Mrs. Kunal Steel Suppliers does not maintain double entry book of accounts. So Kunal Steel Suppliers company का firm का नाम है. ये they do not maintain double entry, means single entry system maintain करते, incomplete accounts maintain करते हैं. They have furnished you with the following information. Debtors का opening balance 1st April 2018 and 31st March 2019 दो values दिया है. One is the opening and the other one is the closing. Then creditors is given opening and closing. Stock opening and closing. Opening stock जो 1st April का stock है that will be the opening stock and 31st March का जो stock है it will be the closing stock. Stock on beginning of the date, stock on ending of the date, opening stock, closing stock. Then we have furniture, machinery, only opening balance is given. Closing balance में अगर क्वेश्चन में कुछ एडिशन होगा that is purchase होगा तो वो ऐड करेंगे. सेल होगा फर्नीचर या मशीनरी का तो लेस करेंगे. कैश एंड बैंक बैलेंस opening is given, closing is not given, there is a question mark. So what we will do, we have to compulsorily prepare cash bank account. We have to compulsorily prepare cash bank account. तभी हमें closing balance of cash आ जाएगा, cash bank balance at the end आ जाएगा. Now summary of cash transactions for the year 2018-19. So cash transactions for the year is given. Cash sales 56,000. What do you mean by cash sales? Cash sales means sold goods or immediately for cash. Cash sales मतलब goods sell किया and on the spot हमने पैसा receive किया. Receive from debtors for credit sales. हम जिनको क्रेडिट में सेल करते वो हमारे डेटर्स है. सो डेटर्स से पैसा मिला है, that will be received from debtors on credit sales done 8,50,000. Then paid to our creditors on credit purchase. क्रेडिटर्स कौन है? जिनसे हम उधार में परचेस करते हैं उनको पे किया 4,80,000. wages paid is payment but wages paid comes in the trading account. दूसरा इफेक्ट आएगा trading account में. 2 wages, salaries will come in the profit and loss account and creditors को पे करना, wages पे करना, salary पे करना, all are payments done. So cash book के payment side में आएगा. Printing and stationery expenses paid, profit and loss account debit side and cash and bank balance payment side. Drawing capital में से minus होगा in the balance sheet and payment side of the cash book. Additional capital introduce. Capital introduce करेगा owner तो पैसा आएगा बिजनेस में. दिस इज रिसीव साइड ऑफ कैश बुक एंड बैलेंस शीट में कैपिटल में ऐड होगा बिकॉज कैपिटल ऑफ ओनर विल इंक्रीज. कमीशन रिसीव्ड, मनी विल कम इन एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड. कैश परचेज, मनी विल गो आउट एंड ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड. कैश परचेज परचेसेस में आएगा कैश परचेज. सन्ड्री एक्सपेंसेस पेड मतलब पेमेंट साइड में और P&L अकाउंट डेबिट साइड सन्ड्री एक्सपेंसेस, 2 सन्ड्री एक्सपेंसेस. देन अदर ट्रांजैक्शन, डिस्काउंट अलाउड. डेटर्स को डिस्काउंट अलाउ करते हैं और डिस्काउंट अलाउ करेंगे तो डेटर कम होगा और P&L अकाउंट में डेबिट साइड में 2 डिस्काउंट अलाउड. डिस्काउंट रिसीव करते हैं इनकम है और क्रेडिटर्स है
उनसे डिस्काउंट मिलेगा तो हमारा परचेसेस का अमाउंट कम होगा। मीन्स हम गुड्स खरीदेंगे, सपोज 10,000 में 2,550 का डिस्काउंट दिया तो उतना कम पे करेंगे। सो क्या होता है, क्रेडिटर्स कम होगा when there will be discount received. So discount received will come in the creditor account, discount allowed will come in the debtor account. Then bad debts, हमारा debtor कम हो जाएगा, bad debts return of debtor कम हो जाएगा। salaries outstanding, सैलरी में ऐड करेंगे एंड बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड में शो करेंगे। सैलरीज आउटस्टैंडिंग दो जगह आएगा ना, आउटस्टैंडिंग सैलरीज, वन वी विल ऐड इन द सैलरीज, सेकेंड बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड। मीन्स सैलरी पे करना बाकी है, आउटस्टैंडिंग मीन्स ड्यू, पे करना बाकी है। सो टू प्लेसेस एंट्री विल कम, सैलरी में ऐड होगा, बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड में फिर से बताएंगे। सेकेंड इफेक्ट, डेप्रिसिएशन 10% ऑन फर्नीचर, 20% ऑन मशीनरी। सो असेट में से माइनस होगा, पीएनएल अकाउंट में डेबिट साइड में डेप्रिसिएशन। प्रिपेयर ट्रेडिंग पीएनएल अकाउंट ऑफ मिसेस टी कुणाल स्टील सप्लायर्स for year ended 31st March 2019 and balance sheet on the same date. So what we have to prepare, trading P&L account prepare करना है, balance sheet prepare करना है, दोनों as on for the year ended 31st March 2019, balance sheet also same date. लेकिन देखो capital not given, summary assets and liability में capital is not given, so we have to prepare the opening balance sheet because capital is not given. ओपनिंग बैलेंस शीट प्रिपेयर करना कंपल्सरी हो जाएगा। सो सी ओपनिंग बैलेंस शीट आल्सो इज देयर इन द वर्किंग नोट फॉर फाइंडिंग आउट द ओपनिंग कैपिटल। देन बिकॉज क्रेडिट सेल्स इज नॉट गिवन, डेटर अकाउंट, क्योंकि क्रेडिट परचेस इज नॉट गिवन, क्रेडिटर अकाउंट, क्योंकि क्लोजिंग कैश बैंक बैलेंस इज नॉट गिवन। क्वेश्चन मार्क है देखो, कैश बैंक बैलेंस क्लोजिंग, there is a question mark, so cash bank account भी प्रिपेयर करना पड़ेगा। इतना अकाउंट्स प्रिपेयर करना है वर्किंग नोट में। सो लेट अस स्टार्ट। सबसे पहले डेटर का ओपनिंग बैलेंस एंड क्लोजिंग बैलेंस इज देयर। लेट अस प्रिपेयर द ओपनिंग बैलेंस शीट। सारे असेट को कॉपी करेंगे, उससे पहले क्रेडिटर इज लाइबिलिटी ना, सो मैं पूरा कॉपी कर रही हूँ। See, I am going to copy all the assets working note में। यहाँ पे क्रेडिटर्स नहीं चाहिए बिकॉज क्रेडिटर्स कहाँ पे आते हैं, क्रेडिटर कम्स इन द लाइबिलिटी। सेकेंड फिगर मैंने कट करके लाइबिलिटी साइड में बताया। नाउ वी ऑल्सो वांट द अमाउंट्स, वी ऑल्सो वांट द अमाउंट्स, so all the amounts I will copy, but second वाला creditor है, creditor का amount creditors में liability side में आएगा। side come here, paste किया, but ये जो है यहाँ से मैं कट करूंगी। second वाला is creditors, so I will cut from here and I will show here. now इसको close करेंगे तो capital आ जाएगा। close it, close asset side का टोटल कितना आ रहा है देखो, asset side का टोटल कितना आ रहा है, asset side का टोटल how much it is coming, are you getting 9,90,500, 9,90,500। Here also I will write 9,90,500। जो बैलेंसिंग फिगर होगा that will be the capital and we will write this is the balancing figure, balancing figure, and how much amount you get, balancing figure कितना आ रहा है 744,800, so 7,44,800।
दिस इज बैलेंसिंग फिगर ऑफ कैपिटल. नाउ ये कैपिटल क्लोजिंग बैलेंस शीट का ओपनिंग फिगर रहेगा. कैपिटल 7,44,800. इतना हो गया. हमने क्या किया, बैलेंस शीट में, ओपनिंग बैलेंस शीट में जो जो इंफॉर्मेशन दिया था, असेट का असेट में लिखा, लाइबिलिटी का लाइबिलिटी में लिखा. असेट साइड का टोटल किया, लाइबिलिटी साइड से ज्यादा है, जो बैलेंसिंग फिगर है वो कैपिटल है. ये 1 अप्रैल का जो कैपिटल है वो 31 मार्च 2019 का ओपनिंग कैपिटल रहेगा. इसमें नेट प्रॉफिट ऐड होगा, एडिशनल कैपिटल होगा तो ऐड होगा, ड्रॉइंग होगा तो माइनस होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होगा तो ऐड होगा. फिर सब एडजस्ट करने के बाद वी विल गेट क्लोजिंग कैपिटल. सो ओपनिंग कैपिटल वी आर राइटिंग हियर. नेक्स्ट व्हाट वी विल डू, क्लोजिंग कैपिटल का भी कुछ फिगर्स दिया है. क्या दिया है? डेटर्स, क्रेडिटर्स एंड स्टॉक. Creditors will come in the liability, but debtor and stock is asset. So what I will do, we can do one thing, all we can copy सारे assets को और liability को copy करते हैं. और let we always start from the beginning. कहाँ से भी आप start कर सकते हो. तो ये मैं क्या कर रही हूँ, ये creditor तो asset में नहीं आता, तो मैंने यहाँ से कॉपी किया और यहाँ पे बता दिया. अब फिगर्स कॉपी कर लेते हैं. ओपनिंग कैपिटल में हमें 3 फिगर्स दिया है. कौन सा? डेटर, क्रेडिटर एंड स्टॉक. सो डेटर, क्रेडिटर एंड स्टॉक, जिसमें क्रेडिटर इज अ लाइबिलिटी. सो व्हाट आई विल डू, डेटर, क्रेडिटर एंड स्टॉक. सो इसमें सेकेंड वाला फिगर क्रेडिटर का है. So that I will write in the creditor. Done. So now what I will do, अभी मेरे पास डेटर और क्रेडिटर का ओपनिंग फिगर भी और क्लोजिंग फिगर भी है. So डेटर अकाउंट, क्रेडिटर अकाउंट भी प्रिपेयर करना है. So what we will do now, डेटर is a asset. डेटर is a asset. So इधर लिखेंगे to balance brought down, to balance brought down. So तो यहाँ पे ओपनिंग डेटर देखो कितना है, 2,50,500. सो डेटर इज अ असेट, इधर लिख दिया. एंड यहाँ पे बाय क्लोजिंग बैलेंस इज ऑलवेज इन द ऑपोजिट साइड. हाउ मच इज द फिगर? क्लोजिंग फिगर देखो डेटर का कितना दिया है, 275,800. सो यहाँ पे लिखेंगे 275,800. नाउ क्रेडिटर्स का कितना बैलेंस फिगर दिया है? क्रेडिटर का ओपनिंग फिगर है 245,700. क्रेडिटर इज अ लाइबिलिटी. लाइबिलिटी मतलब इधर आएगा क्रेडिट साइड में by balance brought down. So here I will write. इसके बाद क्लोजिंग में देखो, 1 मिनट, क्लोजिंग का क्रेडिटर्स कितना है, 228,200. क्रेडिटर्स का क्लोजिंग बैलेंस, क्रेडिटर क्रेडिट बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस हमेशा ऑपोजिट साइड में होता है. सो टू बैलेंस कैरीड डाउन. अभी इसके बाद डेटर क्रेडिटर लिखने के बाद हमारे पास स्टॉक है. डेटर क्रेडिटर का ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस लिखने के बाद हमारे पास स्टॉक है. So this 35,000 is opening stock and 60,000 is closing stock. So let us write that opening stock, closing stock किधर आएगा? 2 opening stock in the trading account. 2 opening stock
रिमेंबर द अमाउंट, इट इज 35,000 एंड इधर आ जाएगा बाय क्लोजिंग स्टॉक 60,000 closing stock, which is how much? 60,000. इसके बाद we have furniture, machinery and cash bank balance. तो फर्नीचर एंड मशीनरी में परचेज सेल तो कुछ नहीं है, पूरा क्वेश्चन रीड कर दिया, बट ये ओपनिंग बैलेंस में ही डेप्रिसिएशन लेस होगा. सो इस दोनों में एडजस्टमेंट है. हम लोग क्या करेंगे, दोनों में एडजस्टमेंट है. सो इनर कॉलम में आई विल लीव वन लाइन फॉर डेप्रिसिएशन, लीव वन लाइन फॉर डेप्रिसिएशन. देन कैश बैंक बैलेंस का, कैश बैंक बैलेंस कितना है, कैश बैंक बैलेंस है 75,000. वी आर प्रिपेयरिंग कैश बैंक बैलेंस. सो यहाँ पे वी विल गो कैश इज अ असेट. सो यहाँ पे लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 75,000. टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 75,000. Now we come to the summary of cash transaction. ये सारा पोस्ट कर दिया. Summary of cash transaction में cash sales and received from debtors दोनों रिसीट है, पैसा आ रहा है. अमाउंट ध्यान में रखना 56,000, 8,50,000. So let us go to the cash book. Let us go to the कैश बुक. दोनों लिख दिया. यहाँ पे भी कोई रिसीव फ्रॉम डेटर्स नहीं लिखना, सिर्फ डेटर्स लिखना है, बिकॉज समझ में आता है. इफ इट्स इन द रिसीव फ्रॉम डेटर्स मतलब रिसीव साइड में ही होगा, डेटर से पैसा मिल रहा है. और ये क्या है, कैश सेल्स. अमाउंट कितना है, आई हैव टोल्ड यू टू रिमेंबर द अमाउंट. वन इज 56,000. Second is how much? 8 lakhs. 8,50,000. So यहाँ पे लिखेंगे two debtors 8,50,000. Now cash sales. Sales किधर आता है, दूसरा इफेक्ट. सेल्स आता है ट्रेडिंग अकाउंट में. सो ट्रेडिंग अकाउंट में जाएंगे एंड वी विल राइट बाय सेल्स, बाय सेल्स. और यहाँ पे लिखेंगे कैश सेल्स. अमाउंट कितना है 56,000. So I will write in the inner column. And one more thing I will write here, that is credit sale, जो डेटर अकाउंट से मिलेगा. ये हो गया. इसके बाद go to the cash account again. टू डेटर्स. डेटर अकाउंट्स में क्या हो जाएगा, टू डेटर का ऑपोजिट बाय कैश बैंक. डेटर अकाउंट में हो जाएगा बाय कैश बैंक एंड अमाउंट रहेगा 8,50,000. देन अगेन गो टू द कैश बुक. हमारे पास है पेड टू क्रेडिटर्स, wages paid, salary paid, printing and stationery, drawing. ये सारे पेमेंट्स हैं. सबको कॉपी किया. ऑल आर पेमेंट्स. आई हैव कॉपीड एवरीथिंग बिकॉज ये सब पेमेंट साइड में आएगा. सो आई विल गो टू द कैश बैंक अकाउंट. सारा पेमेंट साइड में आएगा, बट मेरे को पेमेंट साइड स्टार्ट्स फ्रॉम बाई ना. पेमेंट है तो बाई रहेगा. वेजेस पेड लिखना है तो वेजेस पेड लिखो. बाय वेजेस बिकॉज क्रेडिट साइड मींस इट विल स्टार्ट बाय बाय. सिर्फ वेजेस लिखोगे तो भी चलेगा, बिकॉज व्हेन इट इज पेमेंट साइड इट विल बी पेड ओनली. प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी एंड बाय ड्रॉइंग ऑल आर पेमेंट. अब ये सबका अमाउंट कॉपी कर लेते हैं. देखो ये
paid to creditors, payment, wages paid, payment, salary paid, payment, printing and stationery expenses paid, payment, drawing, payment, because owner of the business takes the business money for his personal use, तो पैसा बाहर जाता है, so it will again be payment. So ये सारे payments का amount मैंने copy किया. I copied all the amounts and I will paste here on the payment side. One by one दूसरा इफेक्ट देंगे. बाई क्रेडिटर्स, तो क्रेडिटर्स में क्या होगा? बाई क्रेडिटर्स, तो क्रेडिटर अकाउंट में बाई का ऑपोजिट टू, और ऑपोजिट अकाउंट का नाम टू कैश बैंक. सो 4,80,000 ध्यान में रखेंगे. क्रेडिटर अकाउंट में टू कैश बैंक 4,80,000. I will write here 4,80,000. Both effects given. Now wages comes in the trading account 39,200. So I will go to the trading account. Trading account में पहले तो 2 purchasers आएगा, और purchasers में कैश परचेज भी है और क्रेडिट परचेज भी है. इसके बाद आएगा, लेकिन it will start from 2 wages paid. How much it is? 39,600 है, या सिर्फ 39,000 है? 39,200. So I will write 39,200. Then we have salaries, but salary has an adjustment also. Outstanding salary, so salary again comes in the trading account. To salary 45,800. To salary, I will go to the trading account के बाद salary comes in the P&L account. To salaries 45,800 will come in the inner column. Salary में 45,800. फिर उसके बाद है प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी. अगेन प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी प्रॉफिट एंड लॉस 24,500. रिमेंबर द अमाउंट. हाउ मच इज द अमाउंट? यहाँ पे लिखेंगे प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी. How much it is? 24. So I will write 24,500. Next क्या है? Next payment क्या है? 24,500 हो गया. ड्रॉइंग का दूसरा इफेक्ट, बैलेंस शीट में जाओ, लिखेंगे लेस ड्रॉइंग, ब्रैकेट में 25,000. This is also done. Now go to the cash bank summary. जितना अभी बाकी है बाकी का we will do. So यहाँ पे we have additional capital introduce, पैसा आएगा. कमीशन रिसीव पैसा आएगा. So दोनों रिसीट्स को मैंने कॉपी किया. 80,000, 59,000 ध्यान में रखो. So I will again go to the cash bank और यहाँ पे कॉपी किया. So additional capital I will write 2. फिर कमीशन अगर रिसीव साइड में है तो वो रिसीव भी होगा. अमाउंट क्या था? How much was the amount? Let us again go above and check 6. Amount is 80 and 59,000. Amount to be remembered is 80,000 and 59,000. So 80,000, 59,000. कैपिटल इंट्रोड्यूस किया तो कैपिटल बैलेंस इंक्रीज हो गया होगा. सो ऐड करेंगे, ऐड कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड.
कैपिटल इंट्रोड्यूस कितना है, रिमेंबर दिस अमाउंट 80,000. एंड देन हमारा नेक्स्ट रिसीट क्या है, कमीशन रिसीव 59,000. कमीशन रिसीव कम्स इन द P&L अकाउंट. इधर लिखेंगे बाय कमीशन, एक लाइन छोड़ के ग्रॉस प्रॉफिट के लिए कमीशन रिसीव्ड वी विल राइट 59,000. सिर्फ कमीशन लिखा तो भी चलेगा बिकॉज इन द क्रेडिट साइड इट इज कमीशन रिसीव्ड ओनली. इसके बाद व्हाट एल्स इज गिवन, इसके बाद दिया है कैश परचेस और सन्ड्री एक्सपेंस पेड, दोनों पेमेंट्स है 69 और 36,600 ध्यान में रखो. अगेन गो टू द पेमेंट साइड एंड लिखिए ये दो पेस्ट करेंगे बाय एंड हियर ऑल्सो वी विल राइट बाय. अब अमाउंट कितना है 69,000 and 36,600. So cash purchase comes where trading account purchases 69,000. So go to the trading account, right here 69,000. ट्रेडिंग अकाउंट में आता है कैश परचेस और अभी सन्ड्री एक्सपेंसेस है. सन्ड्री एक्सपेंस P&L अकाउंट 36,600. सो P&L अकाउंट में जाएंगे एंड वी विल राइट टू सन्ड्री एक्सपेंसेस 36,600. और समरी कैश ट्रांजैक्शंस डन, सारे कैश ट्रांजैक्शंस हो गए. सो कैश बुक बंद किया जा सकता है. वी कैन क्लोज द कैश बुक. वी कैन क्लोज द कैश बुक नाउ. क्लोजिंग बैलेंस मिल जाएगा. डेबिट साइड ऑफ कैश बुक का टोटल कितना आ रहा है देखो. कैश बुक का डेबिट साइड का टोटल निकालो 75,000, 56,000, 8,50,000, 80,000, 59,000. We get 11,20,000. We get 11,20,000 and क्रेडिट साइड से माइनस करो मिलेगा बाय बैलेंस कैरी डाउन. ये रहेगा क्लोजिंग कैश बैलेंस. पूरा माइनस करो यू गेट 3,99,900. 3 lakh. See, you're getting this amount 3,99,900. सारा माइनस करेंगे 11,20,000 से. सारा पेमेंट्स माइनस करेंगे तो कैश इन हैंड बचेगा 3,99,900. So we will go to the balance sheet and here लिखेंगे 3,99,900. This is done. Now go to the additional information given. Discount allowed. डिस्काउंट अलाउ करेंगे तो डेटर कम होगा. डेटर असेट, असेट मतलब डेबिट बैलेंस कम होगा, क्रेडिट करेंगे. सो टू डिस्काउंट बाय डिस्काउंट डेटर असेट, असेट डेबिट बैलेंस. बट डिस्काउंट मिलने से उधार कम हो जाएगा तो डेबिट का अपोजिट क्रेडिट में. तो बाय डिस्काउंट अलाउ 3,800 ध्यान में रखो. डेटर में जाएंगे, डेटर में जाएंगे और लिखेंगे बाय डिस्काउंट. हाउ मच इट इज 3,800. बट डिस्काउंट अलाउड कम्स इन द P&L अकाउंट ऑल्सो. तो यहाँ पे लिखेंगे टू डिस्काउंट अलाउड 3,800. Here we will write 3,800. इसके बाद डिस्काउंट रिसीव्ड. किससे डिस्काउंट मिलता है
क्रेडिटर से, जिनसे हम परचेज करते हैं वो हमें डिस्काउंट देते हैं। हमें डिस्काउंट रिसीव कब होता है? व्हेन वी परचेज गुड्स। तुमको डिस्काउंट कब मिलता है? व्हेन यू गो टू द शॉप, व्हेन यू परचेज समथिंग यू रिसीव डिस्काउंट। सो डिस्काउंट रिसीव्ड इज 2550। तो डिस्काउंट रिसीव होगा तो क्रेडिटर कम होगा, क्रेडिटर क्रेडिट बैलेंस कम होगा तो डेबिट। सो क्रेडिटर्स में 2550 क्रेडिटर अकाउंट में जाएंगे, क्रेडिटर अकाउंट में टू डिस्काउंट रिसीव्ड 2550, we will write here 2550। अब डिस्काउंट रिसीव करना इनकम है, सो बाय डिस्काउंट रिसीव लिखना है तो रिसीव भी लिख दो, कितना 2550। सो दिस इज ऑल्सो दोनों इफेक्ट डन। नाउ नेक्स्ट वन, बैड डेट्स। डेटर कम होता है बैड डेट से, सो 6000। डेटर कम होता है तो डेटर असेट डेबिट बैलेंस कम होता है तो इधर लिखेंगे बाय बैड डेट्स। कितना है अमाउंट? इधर लिखेंगे 6000। अब बैड डेट्स पीएनएल अकाउंट में भी आएगा। टू बैड डेट्स 6000। This is done. Now salary is outstanding 6000। तो सैलरी में जाके लिखो एड आउटस्टैंडिंग। ऐड होता है मीन्स अभी भी 6000 का सैलरी पे करना बाकी है। 45,800 पे किया, अभी भी पे करना कितना बाकी है? 6000। सो आउटस्टैंडिंग भी ऐड, प्रीपेड भी माइनस। तो ये हो जाएगा कितना? 51,800। और लाइबिलिटी साइड में लिखेंगे आउटस्टैंडिंग, या लेट अस राइट दिस वे, आउटस्टैंडिंग सैलरी 6000। ये भी हो गया। इसके बाद नाउ डेप्रिसिएशन इफेक्ट इज देयर, 10% ऑन फर्नीचर, 20% ऑन मशीनरी, लास्ट एडजस्टमेंट। सो लेस depreciation 10%, 10% depreciation comes to 13,000। और यहाँ पे 20% depreciation, 20,000 is 1 lakh, 20% of 5 lakh is 1 lakh। सो इधर हो जाएगा 4 lakhs और इधर हो जाएगा 1 lakh 1,17,000। ये हो गया। अब इसका दूसरा इफेक्ट देना पड़ेगा। सूट टू पीएनएल अकाउंट में टू डेप्रिसिएशन फर्नीचर एंड मशीनरी। Furniture is 13,000 and machinery is 1 lakh। So outer column में आ जाएगा, 1,13,000। All adjustments done. Now finally close the creditor and debtor account। Debtor account को बंद करो। You can see क्रेडिट साइड इज हैवी। डेटर अकाउंट को बंद करो। 8,56,000, 3,800, 2,75,800 आते हैं। हाउ मच? 11,35,600, 11,35,600। सो इधर हो जाएगा 2
कैसे डेटर इंक्रीज होता है? क्रेडिट सेल्स. हाउ मच इज द अमाउंट ऑफ क्रेडिट सेल्स? 8,85,100. 8,85,100. So let us go to the sales. Let us go to the sales and we will write sales में जाके 8,85,100. आउटर कॉलम में कितना आ जाएगा? आउटर कॉलम में आ जाएगा 9,41,100. सेम वे गो टू द क्रेडिटर्स अकाउंट. डेटर्स बंद किया ना. दिस इज द बैलेंसिंग फिगर. सेम वे गो टू द क्रेडिटर्स अकाउंट. क्रेडिटर्स अकाउंट को क्लोज करो. क्रेडिटर्स अकाउंट को आएगा 7,10,750. सेम अमाउंट वी विल राइट हियर 7,10,750. जो बैलेंस रहेगा उसको बोलेंगे बाय क्रेडिट परचेसेस. ये हमारा है बैलेंसिंग फिगर. हाउ मच बैलेंसिंग फिगर वी आर गेटिंग? क्रेडिटर का 4,65,050. 4,65,050. So this is also done. Credit purchase comes in the trading account. So यहाँ पे हम लोग जाएंगे. We will write 4,65,050. 4,65,050. तो ये हो जाएगा 5,34,050. ये भी हो गया. Now close this. Close the trading account. How much you get? 10,01,100. You get 10,01,100. एंड यहाँ पे जो फिगर आएगा इसको बोलेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट में जो फिगर आएगा उसको बोलेंगे ग्रॉस प्रॉफिट कैरीड डाउन. हाउ मच इज इट कमिंग? हाउ मच इज द ग्रॉस प्रॉफिट कमिंग? 3,92,850. 3,92,850. ये इधर आ जाएगा. इसको बोलेंगे बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन. इसके बाद नेट प्रॉफिट के लिए हाउ मच यू गेट? 4,54,400. 4,54,400. जो बैलेंसिंग फिगर होगा वो होगा हमारा नेट प्रॉफिट कैरीड डाउन. नेट प्रॉफिट कैरीड डाउन आ गया 2,18,700. 2,18,700. So this profit हम लोग यहाँ पे ऐड कर देंगे. ऐड नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर. ये ईयर का कितना प्रॉफिट है वो ऐड करेंगे. लॉस होता तो माइनस करते थे. अभी आउटर कॉलम में वी हैव टू सी आउटर कॉलम में व्हाट विल कम. आउटर कॉलम में व्हाट विल कम? 10,18,500. 10,18,500. देखो 7,44,800, 80,000, 2,18,700 minus 25,000. Now what will be the total amount? 12,52,700. 12,52,700. Check whether both the sides you are getting
both the sides, you're getting this amount, then you can say that your balance sheet has tallied. With this sum is done. Thank you very much, everyone.